Hi everyone. In this lecture, we discuss how to find the solution of linear differential equation by using method of variation of parameter, or simply we said VOP. So to obtain the solution using VOP method, we categorize these problems into two types or two methods. First method is used when the given linear differential equation is of second order, and second method is for third order linear differential equation. So we start with method 1. So we know that the linear differential equation is of the form f of d into y is equal to x, and the complete solution of this linear equation equal to y is given by CF plus P. So we already discussed how to find the CF, and we discussed the different method for the evaluation of particular integral, some shortcut methods or general methods. But in this method, we have to find the solution of differential equation by using variation of parameter. So what we consider for this method? So as usual, first we have to find the complementary function. So in first step, we have to find the complementary function, and we have to compare these with C1y1 plus C2y2. Comparing with means, suppose we have a roots of the equation d equal to 1 and d equal to 2, then the complementary function is given by c1 e to the power x plus c2 e to the power twice x. From this is considered as y1 and this term is considered as y2. You can interchange this is y1 and this is y2. So by comparing this equation with given complementary function, we can find the value of y1 and y2. Now in next step, we have to find the value of Wronskian. Now next, find Wronskian. So Wronskian is denoted by W, and its value is given by determinant of y1, y2, y1 dash, y2 dash. y1 and y2 with the terms what we are getting with comparing with complementary function, and using the derivative of that function we can find y1 dash and y2 dash. Now solving this determinant, we get y1 y2 dash minus y2 y1 dash. This is the values for Wronskian. Here we noted that Wronskian is not equal to 0, because when the Wronskian is 0, this method is failed. So we will discuss how the method is failed when the Wronskian is 0. So in second step, you have to find the Wronskian. Now in third, the particular integral is given by u y1 plus v y2. So we already know the value of y1, we already know the value of y2, and this u and v are the unknowns, and we have to find these unknowns. So where the value of this unknown is given by, the value of u is given by minus y2 x upon w into dx. What is y2? y2 is the second value. Then Wronskian, we already find the value of Wronskian. X is the right hand side of the equation, and integration it with respect to x. We get the value of u, and the value of v is given as integration of
y1 x upon w dx. This x upon w dx is a common for in both the formulas. Only the difference is in first the coefficient of u is y1, so we have to use y2 here, and the coefficient of v is y2, so here we are use y1. First term is negative, second term is positive. Now here we clear that y Wronskian is never be 0, because when the Wronskian is 0, we get 1 upon 0, and 1 upon 0 is not defined. So this is a method of variation of parameter for the evaluation of second order linear differential equation by variation of parameter method. Actually this method is also called the Wronskian method. इसको हम Wronskian method भी बोल सकते हैं, Wronskian by using variation of parameter. So यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा पहले क्या करना है. पहले स्टेप में हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो भी वैल्यू आएंगे उसको हमको c1 y1 और c2 y2 से कंपेयर करना है. जो c1 का कोएफिशिएंट होगा वो y1 रहेगा और जो c2 का कोएफिशिएंट रहेगा वो y2 रहेगा. So by using that value of y1 and y2, we have to find the value of Wronskian and then use the formula to find the particular integral as uy1 plus vy2, where the value of u is given by this formula minus y2x upon w dx, and the value of v is given by y1x w dx. Now putting this value of u and v in this equation, we get particular integral. अगर हम इसमें पुट करेंगे ये वैल्यूज, अगर इस फार्मूले में आपने पुट किया है, इस फार्मूले पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल. और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के बाद कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मालूम है, कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या करना है, CF प्लस PI करना है. तो CF और PI करने के बाद आपको जो मिलेगा वो फाइनल आंसर मिलेगा. लेकिन ये मेथड आपको सिर्फ उसी लिए यूज करना है जहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर क्या होगी, सेकंड. अगर इक्वेशन थर्ड ऑर्डर का है और आपने अगर ये मेथड यूज की है तो आपका प्रॉब्लम वहां पे रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए ये ध्यान में रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेकंड ऑर्डर का ही होना चाहिए. थर्ड ऑर्डर के लिए हम इसको एक्सटेंड करेंगे और उसको सेपरेट सॉल्व करेंगे. सो बाय यूजिंग दिस वी कैन सॉल्व वन प्रॉब्लम. सॉल्व d2y by dx square plus 4y is equal to tan 2x. The solution is given by this is the linear differential equation and we have to solve by using variation of parameter. So first we have to write the given differential equation. So given differential equation is d2y by dx square plus 4y is equal to tan 2x, called as equation number 1. Now first we have to write this differential equation in symbolic form. So symbolic form, this equation can be written as symbolic form is, we have to write second derivative as a d square plus 4, taking y is common, which is equal to tan 2x, called as equation number 2. Now the complete solution is given by its complete solution is equal to complementary function plus particular integral. Now again we have to separate this problem into two types. One part is complementary function and second part is to find the particular integral. Now we have to find the complementary function. So first to find complementary function. Now to find the complementary function we have to write the auxiliary equation. The first is auxiliary equation is so how we can find the auxiliary equation. auxiliary equation कैसे find करना है, हमको जो भी इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करना है और राइट हैंड साइड को हमको 0 पुट करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड इज d स्क्वायर प्लस 4
So by using this, we can find the auxiliary equation. So auxiliary equation is d square plus 4 is equal to 0. By shifting 4 on another side, we get minus 4, which can be written as 4, and minus 1 can be written as I square. By taking a square root on both sides, we get the square root of 4 is 2, the square root of I square is I, and we get plus minus because we have two roots. So these roots is in the form of complex number alpha plus minus I beta, means roots are complex. So just write the complementary function. So complementary function equal to, which is the formula to find the complementary function when the roots are complex, e to the power alpha x c1 cos beta x plus c2 sin beta x. Now here alpha is absent, means the value of alpha is 0 and the coefficient of I is 2, that is beta is equal to 2. So we get e to the power 0x c1 cos 2x plus c2 sin 2x. Now find, by using this we get e to the power 0 is equal to 1. So we get the complementary function is c1 cos 2x and c2 sin 2x. Okay. Now we have to obtain the particular integral here. Now to obtain the particular, we have to solve this equation by using variation of parameter. So we proceed the step which will be discussed in the procedure for solving the problem by using variation of parameter. So first we have to consider, let complementary function is equal to c1 y1 plus c2 y2. So this is the first step that we have to consider here. The complementary function is c1 y1 plus c2 y2. Now we already find the complementary function, which is given by c1 cos 2x plus c2 sin 2x. ओके, अभी इसको हम कंपेयर करेंगे तो वी गेट, जो c1 का कोएफिशिएंट है वो हमको y मिलेगा y1. सो y1 हो जाएगा हमारा cos 2x और y2 जो है वो रहेगा हमारा sin 2x. सो y1 इज इक्वल टू, और अगर आपने इंटरचेंज कर दिया तो भी चलेगा, किसी का ये y2 हो सकता है y1 हो सकता है, तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा. सिर्फ आपको y1 जो एक बार फिक्स करना है वो आखिर तक वही यूज करना है, और y2 जो आपने फिक्स किया है वो आखिर तक आपको वही यूज करना है. सो बाय यूजिंग दिस y1 एंड y2 वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द Wronskian w. सो w, द फार्मूला फॉर w इज y1 y2 y1 dash y2 dash, which is equal to, the value of y1 is cos 2x, the value of y2 is sin 2x, the derivative of y1, the derivative of cos is minus sin 2x, and the derivative of 2x is 2. Similarly, the derivative of sin 2x is cos 2x, and the derivative of 2x is 2, which is equal to 2 by solving this determinant we get 2 into cos square 2x minus minus plus 2 sin square 2x. So which is equal to 2 in bracket cos square 2x plus sin square 2x, which is equal to 2. Now cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So we get 2 into 1, which is equal to 2. So this is the value for Wronskian. Now we proceed to the next step to find the particular integral. So now particular integral is given by, the formula for particular integral is by using a method of variation of parameter is uy1 plus vy2. Suppose this is equation number 3. Okay,
जो भी इक्वेशन आएगा आपका वो कंसिडर कर लो उसको, 2 होगा 2, 3 होगा 3. वेयर व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u? So formula for u is minus y2 x upon w into dx, which is equal to minus. What is the value for y2? y2 means sine 2x, Wronskian is w, that is 2, and the value of x is tan 2x into dx. Now we have to solve this integral. So minus 1 upon 2 is constant, taking outside the integral. So this is can be written as sine 2x into tan 2x को कैसे लिख सकते हैं हम? It can be written as sine 2x upon cos 2x into dx, which is equal to minus 1 by 2. Now sine into sine can be written as sine square. So sine square 2x upon cos 2x dx. Now we have to integrate this. So by using a formula or by using the adjustment, we have to integrate. So there is no direct formula to find the integration of this term, but we know that sine square theta plus cos square theta is equal to 1. So therefore this term can be written as minus 1 by 2 into sine square 2x can be written as 1 minus cos square 2x upon cos 2x dx, which is equal to minus 1 upon 2 integration of, now separate this term, we get 1 upon cos 2x can be written as sec 2x minus cos get cancelled, we 1 cos is remain here, that is cos 2x. So which is equal to minus 1 by 2. Now we integrate this term. Now first we have to separate the integration and integrate term by term. So first term is sec 2x. Now what is the integration of sec x? The integration of sec x is log of sec x plus tan x. So integration of sec 2x is log of sec 2x plus tan 2x upon the coefficient of x is 2. So we get 2 minus what is the integration of cos 2x? Integration of cos 2x is sin 2x upon the coefficient of again is x is 2. So which is equal to, now here 1 upon 2 and 1 upon 2 is same in both the term. So we take 1 upon 2 is common outside the bracket. तो हमको यहाँ पे मिलेगा 1 upon 2 into 1 upon 2 हो जाएगा यहाँ पे 1 upon 4, और टर्म जो बचेगी हमारे ब्रैकेट के अंदर वो रहेगी log of sec 2x plus tan 2x minus sin 2x. So this is the value for u. Okay, अभी इसका ही यूज करके हम v निकालेंगे, u तो हमको मिल गया. Now second we have to find the value of v. So now the value of v, the formula for v is y1 upon w x dx, which is equal to, what is the value for y1? The value of y1 is cos 2x, the value of w is 2, and the value of x is tan 2x, that is the right hand side term, which is equal to integration of, again 1 upon 2 is constant, taking outside the integral, cos 2x as it is. Now integration of tan, so tan can be written as sin 2x upon cos 2x dx. Now cos get cancelled, we get 1 upon 2. Now what is the integration of sin 2x? Integration of sin 2x is minus cos 2x upon the coefficient of x is 2. So here we get the value as minus 1 by 2 into 1 by 2 is again 1 by 4 into cos 2x. So therefore we know the values of u and v now, and y1 and y2 we directly find the complementary function. तो इसका यूज करके हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल दिखाएंगे. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, फार्मूला इज u y1 प्लस v y2. तो u y1 और v y2 चारों वैल्यूज आपके पास प्रेजेंट है, तो वो वैल्यू यहाँ पर हम यूज करेंगे अभी. सो वैल्यू ऑफ u, तो u की वैल्यू जो निकाली थी हमने वहां पे आपको ऊपर यहाँ पे गिवन है, u की वैल्यू क्या है, माइनस 1 by 4 log of sec 2x plus tan 2x minus sin 2x, that is the value for u.
तो यहाँ पे हम वो यूज करेंगे -1/4 इन ब्रैकेट log ऑफ sec 2x log of sec 2x plus tan 2x minus sin 2x, and the value of y1 is cos 2x plus the value of v is minus again, so -1/4 cos 2x into the value of y2 is sin 2x. Now we can solve this term. So by solving, we get, when we multiply by this term, we get second term is, here we get minus plus 1/4 sin 2x into cos 2x, and here we have -1/4 cos 2x sin 2x, means both the terms are same. So by adding and subtracting, we can cancel this second term and this term. So by cancelling this term, we write only first term, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो है वो हमारे पास है -1/4 log of sec 2x plus tan 2x into cos 2x. So this is the value for particular integral. तो यहाँ पे हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया. लास्ट में हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड कर देंगे. सो वी गेट द फाइनल सॉल्यूशन. सो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था हमारे पास c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, और यहाँ पर हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया माइनस, इसको cos को मैं पहले लिखता हूँ. सो cos 2x/4 यहाँ पे मिल गया हमको, और यहाँ पर रहेगा log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x. सो दिस इज द वैल्यू फॉर complete solution of linear differential equation by using a method of variation of parameter. So इस मेथड से आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का सेकंड ऑर्डर का प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक, इस लेक्चर में हम सेकंड ऑर्डर ही देखेंगे, थर्ड ऑर्डर का एक आधा प्रॉब्लम हम अगले लेक्चर में कवर कर देंगे. सो मेथड एकदम इजी है. रॉन्सकियन की मेथड बोलते हैं इसको. वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की मेथड तो है, लेकिन उसमें रॉन्सकियन हम यूज करें, इसीलिए उसको रॉन्सकियन मेथड ऑफ बाय यूजिंग मेथड ऑफ रॉन्सकियन भी हम बोल सकते हैं. तो एक और प्रॉब्लम लेंगे हम इसी मेथड का, तो उससे क्या होगा, ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली हमको कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम. सो वी कंसीडर वन मोर प्रॉब्लम. सो सेकेंड एग्जाम्पल, सॉल्व d square plus 3d plus 2y is equal to e to the power x. कंपेयर करने के लिए इसका सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी है. हमने यहाँ एक जनरल मेथड में ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है, वहाँ का सॉल्यूशन आपको ऑब्जर्व करो, और नियर अबाउट सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा, सेम ही रहेगा. तो जो सॉल्यूशन हमारा वहाँ पर आया था वही सॉल्यूशन यहाँ पर भी आएगा. तो पहले तो हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे. सो गिवन differential equation is, so equation is d square plus 3d plus 2y is equal to e to the power x, called as equation number 1. तो अभी ये सिंबॉलिक फॉर्म में ऑलरेडी है, इसलिए सिंबॉलिक फॉर्म में बाद में लिखने का कुछ काम नहीं है, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट कंप्लीट सॉल्यूशन. तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो पहले हम निकालेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. So to find the complementary function. So complementary function के लिए आपको क्या चाहिए, complementary function के लिए चाहिए हमको इसका auxiliary equation. तो first we have to write the auxiliary equation. So auxiliary equation is d square plus 3d plus 2 equal to 0. Now by solving this equation on Kelsey or direct method, we can find the two roots for the equation. So the method, we already know how to find the roots of the equation.
यहाँ पर भी हम एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मिडिल सम को स्प्लिट करता हूँ। तो डी स्क्वायर 3d को लिखता मैं d प्लस 2d प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। इसके एक पेयर बनाएंगे हम और इसकी एक पेयर बनाएंगे। तो फ्रॉम दिस d इज कॉमन, so we get d plus 1, and from here 2 is common, so we get again d plus 1. So d plus 1 is common bracket, so we get d plus 1 and we get the second bracket as d plus 2. Evaluating these two bracket, we get d equal to, first term is d plus 1 equal to 0, मतलब d equal to minus 1, and second term is d plus 2 equal to 0, means d is equal to minus 2. So we get two roots here. So by using these two roots, we can write the complementary function. So complementary function is equal to c1, दो फंक्शन है इसीलिए हमको क्या लिखना है, c e to the power mx लिखना है, और दूसरी बार भी हम c e to the power mx लिखेंगे। एक को c1 बोलेंगे, एक को c2 बोलेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और दोनों रूट्स रियल और अलग अलग है। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे हम m1 और इसको बोलेंगे m2। सो पुट दिस वैल्यू c1 e to the power minus x plus c2 e to the power minus 2x. So this is the value for complementary function. तो आपको अभी मालूम है कि ये प्रॉब्लम हमको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ही सॉल्व करना है। तो इसको क्या करूंगा मैं, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सटेंड कर देता हूँ। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज c1y1 प्लस c2y2। ओके, c1y1 प्लस c2y2। तो यहाँ पे एक्चुअली ये होगा कि आपने अगर पहला रूट्स -1 लिया तो आपको ये y1 मिल जाएगा, या आपने पहला -2 लिया तो आपको ये y1 मिल जाएगा। तो y1 व y2 आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन लास्ट में जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा सेम ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पर y1 और y2 से कंपेयर कर दिया, तो मुझे यहाँ पे y1 की वैल्यू मिल गई, वी गेट y1 इक्वल टू e to the power minus 6 एंड y2 इज इक्वल टू e to the power minus 2x। अब इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। अगर आपको लगता है तो वहाँ पे आप उसको पार्ट भी कर सकते हैं टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y1 और y2 मिल गया। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द Wronskian। सो Wronskian इज गिवन बाय y1 y2 y1 dash y2 dash which is equal to y1 is e to the power minus 6, y2 is e to the power minus 2x. Now derivative of e to the power minus x is e to the power minus x into minus 1, and the derivative of e to the power minus 2x is e to the power minus 2x into minus 2. Now evaluate this the value of Wron's determinant and find the value of Wronskian. So by multiply this we get minus 2 e to the power minus 6 into e to the power minus 2x is e to the power minus 3x, माइनस एंड डिटर्मिनेंट के बीच में क्या रहेगा, माइनस, माइनस माइनस इज प्लस, e to the power again minus 3x. So minus 2 e to the power minus 3x plus e to the power minus 3x we get minus e to the power minus 3x. दो में से एक गया, मतलब एक बचा है यहाँ पे, लेकिन वो ज्यादा जो है वो -2 है, तो माइनस से यहाँ पर बाकी रहेगा। तो ये हो गया हमारा Wronskian। अभी Wronskian का यूज करके क्या करना है, हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला निकालेंगे हम। सो नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो फार्मूला है वो कौन सा है, u y1 प्लस v y2, वेयर व्हाट इज द वैल्यू फॉर u, u इज गिवन बाय माइनस y2 x अपॉन w इंटू dx। चलो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सो माइनस y2 की वैल्यू कौन सी ली हमने वो देख लो आप, y1 और y2 जो आपने लिया है वही आपको कंसीडर करना है, उसको चेंज नहीं करना है। तो y2 की वैल्यू है e टू द पावर माइनस 2x, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे y2 की वैल्यू, सो e टू द पावर माइनस 2x, और यहाँ पे x की वैल्यू कौन सी है, e टू द पावर x, और यहाँ पे Wronskian की वैल्यू कौन सी है, w कितना निकाला हमने, e टू द पावर माइनस 3x, बराबर है। Wronskian की वैल्यू कौन सी थी, e टू द पावर माइनस 3x, लेकिन वो निगेटिव था, तो ये निगेटिव चाहिए हमको, और यहाँ पे आएगा dx। इसको इवेल्युएट करेंगे। सो निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर होने के बाद ये यहाँ पे क्या होगा, e टू द पावर 3x, और यहाँ पे ऑलरेडी e टू द पावर माइनस 2x है, तो वहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा e टू द पावर x
और यहाँ पे रहेगा e टू द पावर x। ये इंटीग्रल, इस टाइप का इंटीग्रल हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक सिंपल मेथड है, e टू द पावर x की जगह पे आपको कुछ पुट करना है और इसको डिफरेंशिएट करना है। तो e टू द पावर x इज इक्वल टू t रखेंगे हम, तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा e टू द पावर x dx और इसका डेरिवेटिव रहेगा dt। तो ये वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वी गेट विच इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो e टू द पावर x कितना है t, तो ये हो जाएगा e टू द पावर t और e टू द पावर x इंटू dx की वैल्यू की है dt। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t इज e टू द पावर t और k की वैल्यू जो है उसको रिप्लेस कर दो। सो दिस इज द वैल्यू फॉर u। नाउ सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ v। नेक्स्ट v, द फार्मूला फॉर v इज y1 x अपॉन w इंटू dx। जो हमने थ्योरी में लिखा था वही फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। y1 की वैल्यू थी, पहली टर्म आप देख लीजिए कौन सी है, मेरी जो टर्म थी वो e टू द पावर -6 ली थी मैंने y1, तो मैं वही यूज करूंगा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है e टू द पावर x अपॉन रॉन्स्किन, w की वैल्यू कितनी है माइनस e टू द पावर -3x, ओके, इंटू dx। तो यहाँ पे जो टर्म रहेगी वो रहेगी निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव टर्म है। तो यहाँ पे मिल जाए आपको माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये ऊपर जाने के बाद e टू द पावर -6 और e टू द पावर 3x हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा e टू द पावर 2x और ये e टू द पावर x dx। अगेन हमको वही करना है, पुट e टू द पावर x इक्वल टू t और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा e टू द पावर x dx इक्वल टू dt। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ। तो देखिए यहाँ पर e टू द पावर 2x है, तो इसको मैं सेपरेट करता हूँ, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x। इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो एडजस्ट करने के लिए बराबर हो जाएगा। अभी देखिए e टू द पावर x हमने क्या लिखा t, तो ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगी हमारी e टू द पावर t, ओके। अभी जो सेकेंड टर्म है e टू द पावर x इंटू dx, इसके जगह पे क्या आ जाएगा dt, ओके। और बाद में जो टर्म बची है e टू द पावर x की जगह पे अगेन क्या पुट करेंगे हम t। तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो ऐसा आएगा माइनस टी टू द पावर t dt, जो इंटीग्रेशन रहेगा। और इस इंटीग्रेशन को क्या करेंगे हम अभी सॉल्व करेंगे, ओके। तो विच इज इक्वल टू माइनस, अभी यहाँ पे जो इंटीग्रेशन देखेंगे आप, वो इंटीग्रेशन जो है वहां पे दो फंक्शन है t के। सपोज इसको बोलेंगे हम फर्स्ट पार्ट और इसको बोलेंगे हम सेकंड पार्ट। क्यों इसको फर्स्ट और सेकंड बोला है हमने, क्योंकि यहाँ पे जो यूज करना है वो हमको यूज करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और पार्ट्स में ऑर्डर कौन सी होती है LIATE, मतलब लॉगरिथमिक पहले और इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल लास्ट होता है, इसीलिए हमने एक्सपोनेंशियल हमने यहाँ पे क्या लिखा लास्ट लिखा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला भी आपको मालूम चाहिए। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला जो है वो फार्मूला किस टाइप का है, अगर एक टर्म u है, सेकेंड टर्म v है और उसका हमको इंटीग्रेशन लेना है, तो यहाँ पे हमारे पास दो रिजल्ट है। अभी यहाँ पे जो मैं यूज करूंगा वो यहाँ पे लिखता हूँ। तो क्या करना है आपको, पहली टर्म एज इट इज लेना है, सेकेंड का इंटीग्रेशन लेना है, माइनस पहले का डेरिवेटिव लेना है, इसका डबल इंटीग्रेशन प्लस अप टू सो ऑन। ये जो फार्मूला था ये आपने फर्स्ट ईयर में यूज किया था, और अगर ये आपको नहीं आता है तो आप जो 12 का फार्मूला है वो भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये फार्मूला यूज करूंगा क्योंकि इससे क्या होगा, प्रॉब्लम थोड़ा इजी होगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे अभी। तो यहाँ पे फार्मूला क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म एज इट इज वैसे के वैसे लिखना है आपको, टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t क्या रहेगा, वही रहेगा e टू द पावर t माइनस पहले का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, और अगेन सेकंड का इंटीग्रेशन लेना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू द पावर t। इसके बाद प्लस पहले का इसका डेरिवेटिव आएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और उसके बाद 0 के डेरिवेटिव सभी 0 हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगी टर्मिनेट। इसलिए यहाँ पे ये फार्मूला यूज करने के लिए मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ से आपको आंसर बहुत ही जल्दी और इजीली निकल जाएगा। कैसे किया मैंने, पहले टर्म एज इट इज t, इसका इंटीग्रेशन लिया e टू द पावर t का हो गया इंटीग्रेशन e टू द पावर t
माइनस पहली जो टर्म है इसकी प्रीवियस, उसमें पहले टर्म का आपको डेरिवेटिव लेना है और सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन लेना है। तो t का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन वही रहेगा, माइनस के बाद आएगा प्लस, इसकी प्रीवियस टर्म ये है तो इसका डेरिवेटिव 0 और 0 के डेरिवेटिव 0 आएंगे तो ये हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी। सो विच इज इक्वल टू वी गेट माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा आपको, पहली टर्म t e टू द पावर t और सेकंड टर्म रहेगी अगेन e टू द पावर t। यहाँ से आप e टू द पावर t को कॉमन ले सकते हैं और माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये होगा e टू द पावर t 1 माइनस t। ओके, और हमारा काम नहीं हुआ अभी, t की जो वैल्यूज है वी हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t। तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर t, e टू द पावर x। सो वी गेट दिस, तो ये वैल्यू हो गई हमारी v। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास है। सो देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू u y1 प्लस v y2। यहाँ पे हमको ये वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। सो पहले देखेंगे हम कि u की वैल्यू कौन सी है। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर u, u क्या निकाला था हमने, e टू द पावर x। ओके, so u, the value of u is e to the power x. The value of y1 is e to the power minus x plus the value of v is given by, अभी हमने निकाला v की वैल्यू कौन सी है, तो ये है v की वैल्यू हमारी। तो वैल्यू ऑफ v इज गिवन बाय e टू द पावर x 1 माइनस e टू द पावर x, और v2 कितना था, e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे जो पहली टर्म है वो हमारी है e टू द पावर माइनस x इंटू e टू द पावर x। इसको सॉल्व करो, प्लस यहाँ पे पहली टर्म क्या होगी, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस 2x। सो e टू द पावर माइनस 2x इंटू e टू द पावर x, और सेकेंड टर्म हो जाएगी प्लस माइनस माइनस, ये है e टू द पावर x, e टू द पावर x, और यहाँ पे होगा e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस 2x, ये मिलेगा आपको e टू द पावर माइनस 6। और अगर आप बराबर इसको ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों सेम है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो यहाँ पे ये टर्म हो जाएगी हमारी कैंसल। ओके, तो ये कैंसिल होने से क्या होगा, जो सेकंड टर्म बचेगी हमारी वही हमारा आंसर होगा। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा e टू द पावर माइनस 2x e टू द पावर माइनस 2x इंटू e टू द पावर x। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको मिलेगा प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन। सो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन is given by complete solution is equal to y is equal to cf plus pm. So y equal to the value of cf is c1 e to the power minus x plus c2 e to the power minus 2x, and the value of particular integral is e to the power minus 2x into e to the power x। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। ओके, तो इस प्रकार से आप अगर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से कोई प्रॉब्लम पूछा है आपको, तो ये मेथड यूज करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिए आप, जो यहाँ पे आपको हमेशा नोट करना है, क्या नोट करना है आप, पहली मेथड ये है, सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बात हमको हमेशा याद रखना है कि ये मेथड जो हमने आज डिस्कस की है वो आपको सिर्फ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी यूज करना है। अभी आपका इशू ये होगा कि अगर सेकंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है तो सॉल्व कैसे करना है। तो थर्ड ऑर्डर के लिए थोड़ा अलग चेंजेस है उस मेथड में, रॉन्स्किन के मेथड में हमको थोड़ा 3/3 का डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। तो 3/3 के लिए भी हम जो एक प्रॉब्लम लेंगे वो अगले लेक्चर में हम उसको सॉल्व करेंगे।
तो ये मेथड आपको तभी यूज करना है जब ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और आपको अगर प्रॉब्लम पूछा है कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग VOP, तभी आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरे प्रॉब्लम में भी ये मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम वैसे ही आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा बाय यूजिंग अ प्रीवियस केसेस। तो जिस प्रॉब्लम में आपको पूछेंगे कि सॉल्व दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो वही प्रॉब्लम आपको इस मेथड से यूज करना है और ये मेथड आपको सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी यूज करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।